Hello everyone. In this video, I'm going to cover the topics like conditional statements and the looping statements which we can use in our C program. So let's just first start with the conditional statements that are used in the C programming language. So as you can see on the screen, the conditional statement lets us choose which statement will be executed next. Therefore, they are sometimes called as a selection statements. The conditional statements gives us power to make the basic decisions, obviously in program. And there are three types of the conditional statements which we can use, and they are if statement, if else statement and switch statement. तो ये जो conditional statements है इनको selection statements भी कहा जाता है. Why so? Because with the help of these statements, what we can do, we can just choose or we can select the block of code to be executed after checking some specific condition. So जो भी expression या फिर जो भी conditions अपन check करेंगे in the program, and on the basis of the result of that condition, जो further program का execution है वो decide होगा. Means which part of the program will get executed and which part of the program will get skipped, वो अपन choose कर सकते हैं, decide कर सकते हैं with the help of these conditional statements. So let's see these statements one by one and how they can be used in the program. So the first conditional statement is if statement. This if statement is also called as a simple if statement. So now we'll have a look at the syntax of this if statement. You can see over here syntax क्या है, if and in bracket there is a condition और उसके नीचे लिखा है statement and then semicolon. So in the previous videos I have told you कि probably mostly actually C program में हर statement के बाद semicolon जाता है, but there are some syntaxes or there are some lines जिसके बाद we cannot put a semicolon. So यहाँ पर ये जो if condition है, तो जब भी अपन ये if condition लिखेंगे उसके बाद में semicolon देने का कोई जरूरत नहीं होती है. You can see over here in the syntax only क्या दिया है, if and in bracket there is a condition, बाद में कोई भी यहाँ सेमीकोलन नहीं दिया गया है. एंड देन नीचे स्टेटमेंट्स आर रिटर्न. स्टेटमेंट्स आर मतलब क्या, द स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द इफ कंडीशन, तो वो वहां लिखे जाते हैं एंड वहां पे फिर सेमीकोलन आएगा. तो इस सिंटैक्स में जो इफ वर्ड लिखा है, दैट इफ इज नथिंग बट अ कीवर्ड. वो एक कीवर्ड है, जैसे मैंने बताया था keywords are the reserved word of any programming language and C language has a 32 keywords. ये भी चीज मैंने आपको बताई थी. So from that list of keywords, ये if जो है ये one of keyword है जो use होता है for the simple if statement and if else statement. So यहाँ पर क्या होगा, if and in bracket में क्या है, condition. तो जो भी condition as a programmer अपन वहाँ specify करेंगे वो condition evaluate होगा, check होगा, and on the basis of the result of that condition जो further statements है उनका execution होगा या फिर वो skip होंगे, ये decide किस पे, कौन से basis पर होगा, on the basis of the result which we get after the evaluation of the condition. तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो if is a reserved word or the keyword. Keyword is also called as a reserved word. Then the condition must be Boolean expression. It must evaluate to either true or false. And then statements के वहाँ लिखा है if the condition is true the statement is executed and if it is false the statement is skipped. मतलब ये जो ब्रैकेट में कंडीशन लिखा गया है, दिया गया है, जो ऑब्वियसली प्रोग्रामर स्पेसिफाई करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो ही ये जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे. अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं बिलो द इफ कंडीशन और इफ स्टेटमेंट, तो वो जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो सारे स्किप हो जाएंगे एंड देन रिमेनिंग प्रोग्राम विल गेट एग्जीक्यूटेड. So this next slide shows a flow chart or the diagrammatic representation of the execution of if statement.
सो यू कैन सी हियर, पहले यहाँ डायमंड शेप में ड्रॉ किया है कंडीशन इवैल्यूएटेड। तो जो कंडीशन यहाँ चेक होगी, अगर वो ट्रू है तो ट्रू है तो ही स्टेटमेंट्स which are associated with the if they will get executed, and then if that condition is false then you can see arrow कहाँ जा रहा है, arrow directly जा रहा है after that statements which are associated with the if condition. So यहाँ से वो और क्लियर हो रही है चीजें, कंडीशन अगर ट्रू है तो ही क्या होगा, the statements which are associated with the if block they will get executed, and अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो जो स्टेटमेंट्स है वो स्किप हो जाएंगे and then the remaining program will get executed. नाउ ये चीज है फ्लो चार्ट, जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो, दैट इज अ फ्लो चार्ट. सो फ्लो चार्ट इज नथिंग बट द diagrammatic representation of, we can say, algorithm or syntax. So diagrammatically we can show the flow of execution of a program, and उसके लिए फिर फ्लो चार्ट का यूज होता है. तो वहां पर अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं, एंड ऑब्वियसली हर एक सिंबल का मीनिंग फिक्स्ड है, वो सिंबल अपन उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर जो ऊपर डायमंड शेप पहले ड्रॉ किया है, तो डायमंड शेप जो है इट इज रिजर्व फॉर द कंडीशन चेकिंग. कंडीशन चेक करनी है तो वो यूज करना पड़ता है. फॉर अदर थिंग्स वी कैन नॉट यूज दैट शेप, दिस वन कंडीशन इवैल्यूएटेड वाला. एंड देन जो एक जनरल प्रोसेसिंग होता है उसको डिनोट करने के लिए वी हैव टू यूज द रेक्टेंगल शेप, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट को लिखा है इनसाइड द रेक्टेंगल. सो दिस इज अ फ्लो चार्ट फॉर द सिंपल इफ स्टेटमेंट. उसके बाद में जो सेकेंड स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट, दैट इज नथिंग बट इफ एल्स. अभी प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, सिंपल इफ के केस में अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो पूरा का पूरा जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो स्किप हो रहा था. सो इफ द कंडीशन इज फॉल्स, प्रोग्राम में ऐसे कुछ था ही नहीं कि मतलब अगर फॉल्स है तो कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए वहां अवेलेबल नहीं था. बट इफ प्रोग्राम में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि ट्रू होने के बाद एक पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए एंड कंडीशन फॉल्स होने के बाद एक दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, यहाँ पर पहले एज यूजुअल ये जो कंडीशन लिखा है इफ के बाद में ये इवैल्यूएट होगा. अगर वो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 जो है वो एग्जीक्यूट होगा, या फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ पर वो जो एल्स पार्ट है दैट इज अ स्टेटमेंट 2 दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड. सो वी कैन जस्ट रिलेट दिस थिंग विद द रियल लाइफ स्टफ, लाइक अगर वी हैव टू डू समथिंग तो वो चीज अचीव करने के लिए ऑब्वियसली वी डोंट मेक अ सिंगल प्लान, वी मेक एटलीस्ट 2 प्लान्स. तो ऐसे होता है ना कि अगर प्लान ए वर्क नहीं करेगा तो वी विल गो विद द प्लान बी टू कंप्लीट द टास्क. तो सेम वे वी कैन इम्पोज दैट थिंग ओवर हियर कि यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स भी होती है तो स्टेटमेंट 2 विल गेट एग्जीक्यूटेड. So this is the syntax and the explanation for the if-else statement which we can use in the C program. तो यहाँ पर भी सेम चीज दी है कि if the condition is true, the statement 1 is executed, and if the condition is false, then the statement 2 is executed. तो मतलब either और में चीजें होंगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ही भी execute हो. Either statement 1 will get executed or the statement 2 will get executed. Then here is a flow chart for the if else statement. Again initial में पहले condition ही check होगा, condition check करना है, that's why that thing is written in the diamond shape in the flow chart. उसके बाद अगर condition true होता है तो statement 1 execute होगा, अगर condition false होता है तो statement 2 will get executed. So in this way this if else statement works. Then the third type of conditional statement is a switch case. Now let's have a look at the switch case syntax. तो syntax में क्या दिया गया है, पहले तो है switch,
and in bracket there is an expression. Now inside the curly brackets क्या लिखा है? Case constant 1 statements break, then case constant 2 statements break, and then so on, and then default statement. So let's start with the first line. यहाँ पर जो switch लिखा गया है, switch is also a keyword. Switch is also a keyword from the C language जो use होगा for writing the switch case statement. Then bracket में फिर से यहाँ एक expression है. So obviously पहले क्या होगा? ये जो expression है ये evaluate होगा. After that अगर इस expression का result match करता है constant 1 के साथ, तो ये जो case constant 1 में जो statements लिखे हैं वो execute होंगे. And उसके बाद लिखा है break. Break is also a keyword in the C program. और break से क्या होता है? जहां पर भी break encounter होगा वहीं पर जो execution है प्रोग्राम का वो stop हो जाता है, and जो remaining प्रोग्राम है वो उसका execution skip हो जाता है. So now for example, let's say कि यहाँ पे ये जो expression 1 है इसका जो रिजल्ट है या फिर आउटकम है वो मैच हो रहा है विद द कांस्टेंट 2. तो उस केस में क्या होगा? ये जो केस कांस्टेंट 1 है ऑब्वियसली ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज द वैल्यू वी गेट आफ्टर इवैल्यूएटिंग दिस एक्सप्रेशन इट मैचेस विद द कांस्टेंट 2. सो दैट्स व्हाई जो स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड है विद द केस कांस्टेंट 2 वो एग्जीक्यूट होंगे, एंड लेटर ऑन ब्रेक लिखा है तो दैट्स व्हाई ब्रेक के बाद का पोर्शन फिर पूरा स्किप हो जाता है. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, सबसे पहले स्विच के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो एग्जीक्यूट होगा. वो एग्जीक्यूट होने के बाद में उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इन केसेस के साथ मैच किया जाता है, और जहां पर भी वो मैच हो जाए वो पर्टिकुलर जो कांस्टेंट है या फिर वो जो पर्टिकुलर केस है सिर्फ वही केस एग्जीक्यूट होगा, एंड बाकी जो सारे केसेस है वो स्किप हो जाएंगे. बट कई बार ऐसे भी हो सकता है कि जो भी रिजल्ट मिला है वो किसी भी केस के साथ मैच ना करे. मतलब अगर यहाँ फॉर एग्जांपल 10 केसेस लिखे हैं तो देयर माइट बी अ सिचुएशन कि वो जो रिजल्ट है वो किसी भी केस के साथ मैच नहीं करेगा. तो उस सिनेरियो में फिर क्या होता है? सी यहाँ पर नीचे लिखा है डिफॉल्ट एंड देन डिफॉल्ट स्टेटमेंट. तो किसी के साथ अगर वो मैच नहीं हुआ तो फिर ये जो डिफॉल्ट पार्ट है जो सबसे लास्ट में लिखा जाता है या फिर लास्ट में लिखा गया है वो एग्जीक्यूट होगा, एंड देन वी विल गेट द आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली. सो इन दिस वे द स्विच केस स्टेटमेंट वर्क. एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होने के बाद में जिस केस के साथ रिजल्ट मैच होगा उतना ही केस एग्जीक्यूट होगा एंड रिमेनिंग पोर्शन स्किप होगा. If the result does not matches with any of the case, then the default block or the default part of the switch case gets executed. तो ये थे conditional statements which we can use in the C program. If statement, if else statement and switch case statement. तो ये तीनों में if, then else and switch ये तीनों क्या है? Keywords है from the C language. Now इसके बाद में I will be telling you about the looping statements which we use in the C program. Now you can see the second topic that I'm going to cover in this video is nothing but the loops in C or the looping statement in C. तो जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर, the C language has the 3 looping statements: the while loop, for loop and do while loop. So first I would like to tell you ki why these are called as a looping statements or when we should use these looping statements. So program में कई बार ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, मीन्स ऑब्वियसली मोर देन वंस. तो उस सिनेरियो में उस टाइम पर उसी कोड को मल्टीपल टाइम लिखने से बेटर क्या है? वी कैन यूज द लूपिंग स्टेटमेंट जो सेम ब्लॉक ऑफ कोड को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करेंगे एंड आउटपुट प्रोवाइड करेंगे फॉर द यूजर. तो ये जो तीनों लूप्स है, व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर लूप, इनमें से
जो while लूप है एंड फॉर लूप है, दे आर द प्री टेस्ट लूप, एंड जो थर्ड लूप है डू while, दैट इज अ पोस्ट टेस्ट लूप. तो इसको ऐसे क्यों बोला जाता है, आई विल टेल यू व्हेन वी विल स्टार्ट विद द लूप्स. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट. So same stuff is shown over here on this slide also. Loop के तीन टाइप, while, for and do while, जिसमें से while and for है pre test and do while है post test loop. तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्यों ये while and for loop pre test loop है and do while post test loop है. तो यहाँ पर while and for loop के केस में क्या होता है, स्टार्टिंग में ही इनिशियल स्टेज पे ही जो कंडीशन जो है वो चेक होता है. अगर कंडीशन ट्रू रहता है तो उसी केस में लूप मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा, एंड अगर कंडीशन इनिशियल में ही फॉल्स होता है तो फिर लूप का एग्जीक्यूशन वहीं पे रुक जाता है. तो यहाँ पर इन द केस ऑफ while लूप एंड फॉर लूप व्हाट हैपेंस कि जो भी कंडीशन है वो इनिशियल में ही चेक होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्री टेस्ट लूप. एंड इन केस ऑफ अ डू while, एटलीस्ट एक बार लूप एग्जीक्यूट होगा और फिर उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पोस्ट टेस्ट लूप. एंड कीप इन माइंड दैट कि जब भी कंडीशन फॉल्स होगा उसी टाइम पे लूप का एग्जीक्यूशन रुक जाता है. मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ही लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा एंड उतने टाइम तक ही आउटपुट मिलते रहेगा. Now here on this slide, the flowchart and the sample code for the while statement is given. While statement or the while loop. Again, ये जो while keyword है, while is a keyword in C language which is used to write the while loop. So have a look at the flowchart first. तो flowchart में क्या show किया है? पहले तो है expression और उसके बाद में है statement. तो you can see अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. एंड फिर से एरो देखो कहाँ पे जा रहा है, एरो इज अगेन गोइंग टूवर्ड्स द एक्सप्रेशन टू चेक इट अगेन. एंड इफ दैट एक्सप्रेशन इज फॉल्स, सो सी एरो कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग आउटसाइड द लूप. सो क्लियरली इस फ्लो चार्ट से वी कैन सी दैट जब तक ये एक्सप्रेशन या फिर जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा एंड आउटपुट मिलते रहेगा. एंड एट द मोमेंट जब भी ये एक्सप्रेशन और कंडीशन फॉल्स हो जाए तब जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाता है एंड तभी एग्जीक्यूशन लूप का रुक जाता है. तो ये था फ्लो चार्ट. एंड नाउ सैंपल कोड में यहाँ क्या शो किया गया है, देयर इज अ while which is a keyword and in bracket there is a expression and बाद में है स्टेटमेंट. सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, पहले ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ब्रैकेट में ये इवैल्यूएट होगा. अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर ये फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगे, जो लूप का एग्जीक्यूशन है वो रुक जाएगा. सो दिस वाज अबाउट द while लूप और द while स्टेटमेंट व्हिच वी कैन यूज इन द C program. Then here on this slide, the flowchart and an example, or we can say the syntax is shown for the compound while statement. जैसे previous case में क्या था कि expression true होने के बाद सिर्फ एक ही statement था. So it is up to us. It is up to us as in it is up to the requirement of the application. तो वहां पर अपन multiple statements भी put कर सकते हैं to be executed अगर expression true है. तो यहाँ पर वही चीज हुई है. If the expression is true, then multiple actions यहाँ पर लिखे गए हैं. Actions as in the multiple line of code to be executed. And here again you can see last action के बाद arrow जा रहा है towards the expression again. So जब तक ये condition या फिर expression true होते रहेगा, ये वाला जो block है actions का वो execute होते रहेगा. And जैसे ही the expression become false, then the program control exits from the loop. That same thing is shown over here on the right hand side, while and then expression. जब तक ये true रहेगा ये actions execute होंगे, and जब भी वो false हो जाएगा loop का execution रुक जाएगा.
Then here on this slide an example is given. So see, while in bracket true, मतलब जब तक ये true है, so जो भी कोड यहाँ लिखा है inside the while loop वो execute होते रहेगा. So the code is written like temp is equals to get temperature. If the temperature is less than 68, turn on heater. Else if the temperature is greater than 78, turn on air condition. Else turn off heater and turn off air condition. तो यहाँ पर while loop के inside भी अपन multiple conditions check कर सकते हैं by using if statement, if else statement. ये भी अगेन डिपेंड करता है ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड. मतलब डेवलपर एज अ डेवलपर अपन क्या लॉजिक एस्टैब्लिश करते हैं, उस लॉजिक के बेसिस पर ही वी विल बी चूजिंग द कंडीशंस या फिर स्टेटमेंट्स टू बी रिटन इनसाइड द कोड. सो ऑब्वियसली यहाँ पर जब तक ये ट्रू रहेगा कंडीशन व्हाइल के बाद में, तब तक ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होते रहेगा. देन यहाँ पर एक कंपैरिजन और कंपैरेटिव स्लाइड है ये बिटवीन द फॉर लूप एंड व्हाइल लूप. एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पर फॉर लूप के लिए सिंटैक्स भी दिया गया है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्लाइड. सो हैव अ लुक एट इट. पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं. पहले तो है इनिशियलाइज, उसके बाद में है व्हाइल एक्सप्रेशन एंड देन एक्शंस एंड देन एंड ऑफ व्हाइल. So initialize का मतलब you already know, we have seen this thing in the initial lectures. किसी भी चीज को initialize करना मतलब क्या, कोई तो भी एक value assign करना. तो पहले initialization होगा, फिर while और फिर condition check होगी. जब तक वो condition true है तब तक actions या फिर जो ये statements है ये execute होते रहेंगे. and जैसे ही condition false हो जाए, ये जो execution है loop का ये रुक जाएगा. Now see the syntax of for loop. यहाँ पर क्या चीज है, for in bracket initialize semicolon expression semicolon update. So see here ये जो for है, for is a keyword. Again for is a keyword in C language which is used to write the for loop. तो प्रीवियस केस में मतलब जैसे ये while वाले केस में initialize अलग से किया गया है फर्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर फॉर लूप में क्या है, फॉर लूप में एक साथ ही सब कुछ लिखा गया है. पहले इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन एक्सप्रेशन, मतलब क्या, द कंडीशन टू बी चेक्ड एंड बाद में है अपडेट. सो अपडेट के यहाँ पर क्या होगा, आइदर वी विल बी यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम. सो इन केस ऑफ फॉर लूप एक ही लाइन में वो पूरी चीजें लिखी जाती है. एंड अगेन द सिनेरियो इज सेम, जब तक ये कंडीशन या फिर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तब तक ये जो एक्शंस है या फिर ये स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट होते रहेंगे. एंड जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब लूप का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा. सो दिस इज अ कोड फॉर द फॉर लूप. hash include stdio.h int main void, usual stuff जो सारे C प्रोग्राम में होता है. Now see, inside the main function there is a variable limit of type integer. Then printf statement है, so that will just print the message which is please enter the limit. फिर user limit enter करेगा from keyboard. उसको रीड करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है scanf %d ampersand limit. Again %d क्यों यूज हुआ, बिकॉज द टाइप ऑफ लिमिट इज इंटीजर. एंड आई हैव टोल्ड यू कि जब भी इंटीजर टाइप का डेटा रहेगा वी हैव टू यूज द %d और %i. एंड इस एम्परसैंड से क्या होगा, जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा. एंड एम्परसैंड विल हैव द एड्रेस ऑफ द मेमोरी. नाउ on the next statement for loop is used. For and in bracket, now see, int I is equal to 1 is the initialization, then semicolon I is less than equal to limit is the condition जो check होने वाली है, and then semicolon there is a I plus plus, so is the increment operator. Then I less than equal to limit, जब तक ये condition true रहेगी तब तक ये for loop execute होते रहेगा. and जैसे ही ये condition false हो जाए वैसे ही for loop का execution रुक जाएगा. And then after each execution or after each iteration automatically
ये जो i का वैल्यू है ये इंक्रीज होगा बिकॉज वी हैव यूज्ड i प्लस प्लस इन दिस फॉर लूप, एंड फिर जो भी वैल्यू रहेगा i का वो प्रिंट होगा बिकॉज ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट विच इज रिटन इनसाइड द प्रिंटर, इनसाइड दिस फॉर लूप, printf %d एंड i. सो सी यहाँ पर बैकस्लैश n है, अगेन उसका यूज है टू शिफ्ट द कर्सर ऑन द न्यू लाइन, मतलब हर टाइम जो भी वैल्यू प्रिंट होगी वो नई लाइन पर प्रिंट होगी, एंड बैकस्लैश t इज द हॉरिजॉन्टल टैब एंड देन रिटर्न 0. सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ द फॉर लूप. सो सी आउटपुट इस तरीके से आएगा, पहले आएगा मैसेज प्लीज एंटर द लिमिट, फिर यूजर ने लिमिट पुट किया है 3, सो 1 2 एंड 3 ये नंबर प्रिंट हुए और सारे नंबर्स न्यू लाइन पे प्रिंट हुए, एंड यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड में एक स्पेस है, तो वो स्पेस क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल टैब. एक 8 स्पेसेस का जो स्पेस है वो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द 1\t. Then the same stuff is shown here for the do while loop, which is the third type of loop. So see on the right hand side, do while के केस में क्या syntax है, पहले do, then statement, while and expression. Again यहाँ पर do जो use हुआ है वो भी एक कीवर्ड है C लैंग्वेज का. तो do के बाद में ये जो statement है ये एक बार तो execute होंगे, बाद में है while and then expression. अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू रहता है तो फिर से प्रोग्राम का कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द डू एंड ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. सो सी दैट्स व्हाई ये जो डू वाइल स्टेटमेंट है इसको क्या बोला जाता है, एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट भी इसको बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पर कंडीशन बाद में चेक होती है, इनिशियल में यहाँ कोई कंडीशन चेक नहीं होती. सो दिस इज अ सिंटैक्स फॉर द डू वाइल लूप. चीजें सिमिलर ही है, मींस जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा. Here is another example. Then usual hash include stdio.h int main function. So inside the main function, see here there is a variable loop count of type integer. Then loop count equal to 5 means we are initializing that variable, उसकी initial value है 5. printf लिखा है, printf में जो message है वो as it is print होगा, while loop. Then here is the while loop जहाँ पर अपन condition check कर रहे हैं कि while loop count is greater than 0, जब तक ये loop count की value 0 से greater रहेगी तब तक ये नीचे के statements execute होंगे. So now 5 is greater than 0, condition true है, तो %3d loop count minus minus ये पहले प्रिंट होगा एंड देन printf/n/n. देन लूप काउंट की वैल्यू 5 है, printf do while loop do printf %3d loop count minus minus, while loop count is greater than 0 printf\n and return 0. तो यहाँ पर while loop की वजह से एंड do while loop की वजह से यू कैन सी आउटपुट जो है वो सेम टाइप का आ रहा है, सिर्फ जो लिखने का तरीका है वो अलग है. सिंस लूप काउंट की वैल्यू जो 5 थी तो 5 4 3 2 1 ऐसे ही आउटपुट आने वाला है, बिकॉज कब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक लूप काउंट इज ग्रेटर देन 0 तब तक ही ये कोड एग्जीक्यूट होने वाला है. सो इन दिस वे द लूपिंग स्टेटमेंट्स वर्क. Here again a comparative stuff is shown between the while and do while. While के केस में अगर इनिशियल में ही कंडीशन फॉल्स है तो जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बट डू while के केस में ऐसा नहीं होता, एटलीस्ट एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं बिकॉज द कंडीशन इज चेक इन द लास्ट. So that's it about the conditional statements and the looping statements which we used in the C programming language. I hope आपका जो भी आइडिया है वो क्लियर हो गया होगा about the conditional statements and the looping statements. Obviously you will have to dig in more examples to get the ideas clear and practice on yourself. So thank you.